اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ غفلت سے نہیں بلکہ امن سے۔ اگر میری گفتگو کے دوران میں کوئی سو جائے تو وہ نیند غفلت سے نہیں ہوتی بلکہ امن سے ہوتی ہے۔ جیسے اندھیری رات میں قافلہ دشوار راستہ پر ڈرتے ڈرتے جا رہا ہو اور اہل قافلہ کے کان میں کتے یا مرغ کی آواز آ جائے اور وہ گاؤں میں پہنچ کر آسودہ ہو جائیں اور پاؤں پھیلا کر خوشی خوشی سو جائیں۔ راستہ میں جہاں کوئی آواز اور شور نہ تھا انہیں خوف کے مارے نیند نہ آئی، اور گاؤں میں جہاں امن نہ تھا کتوں کے شور اور مرغوں کے خروش کے باوجود انہیں آسودگی اور خوشی سے نیند آ گئی۔ ہمارا سخن بھی امن اور آبادی کے مترادف ہے، اور ہم انبیاء اور اولیاء ہی کی بات کرتے ہیں۔ روحیں جب اپنے آشناؤں کی بات سنتی ہیں تو امن پاتی ہیں اور خوف سے ان کی خلاصی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس سخن سے امید اور اقبال کی بو آتی ہے۔ جیسے کوئی شخص طریق رات میں کسی قافلہ کے ہمراہ ہو، انتہائی خوف کی وجہ سے وہ ہر لمحہ خیال کرتا ہو کہ راہزن قافلہ میں شامل ہیں۔ وہ چاہتا ہو کہ ہمراہیوں کی باتیں سنے اور انہیں باتوں سے پہچانتا ہو، چنانچہ جب وہ ان کی باتیں سنے تو اسے چین آ جائے۔ قل یا محمد اقرا، کہا اے محمد پڑھ، کیونکہ تیری ذات لطیف ہے اس لیے اس تک نظریں نہیں پہنچتی۔ جب تو بات کرتا ہے تو ارواح معلوم کر لیتی ہیں کہ تو آشنا ہے، انہیں چین آ جاتا ہے اور وہ آرام کرتی ہیں۔ بات کر۔ ترجمہ شعر۔ میرے جسم کو بیمار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ اگر میرا تخاطب تجھ سے نہ ہوتا تو تو مجھے نہ دیکھتا۔ دل رہنمائی کرتا ہے۔ کھیت میں کون سا جانور ہے جو انتہائی طور پر چھوٹا ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آتا؟ جب وہ آواز نکالتا ہے تو اسے دیکھتے ہیں آواز کے ذریعے سے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ دنیا کے کھیت میں خلقت مستغرق ہے اور تیری ذات انتہائی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتی۔ بات کر تاکہ تجھے پہچانے۔ جب تو چاہتا ہے کہ کسی جگہ جائے تو پہلے تیرا دل وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے اور وہاں کے حال پر مطلع ہوتا ہے، پھر دل واپس آتا ہے اور جسم کو کھینچتا ہے۔ اب یہ ساری خلقت انبیاء اور اولیاء کی نسبت سے جسم ہے۔ انبیاء اور اولیاء دنیا کا دل ہے۔ پہلے یہ اس عالم کی سیر کرتے ہیں اور بشریت گوشت پوست سے باہر آ جاتے ہیں، اس دنیا کے نیچے اور اوپر کا مطالعہ کرتے ہیں اور منزلیں قطع کرتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ راہ کیسی ہے۔ پھر واپس آتے ہیں اور خلقت کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ اس عالم اصلی کو، کیونکہ یہ عالم خراب ہے اور سرائے فانی ہے، اور ہم تمہیں خبر دیتے ہیں کہ ہم نے اچھی جگہ حاصل کر لی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ میرا دل تمام حالات میں دلدار کی حضوری میں ہے اور اسے قطع منازل، خوف، رہزن، پالان اور خچر کی حاجت نہیں ہے۔ جسم مسکین ہے جو ان کا مقید ہے۔ ترجمہ شعر۔ میں نے اپنے دل سے کہا اے دل، تو اپنی نادانی سے کس کی خدمت سے محروم ہو رہا ہے؟ ترجمہ شعر۔ دل نے کہا تو نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں تو خدمت کو لازم سمجھتا ہوں، تو ہی سرگردان ہے۔ عشق کی شرح ممکن نہیں۔ تو جس جگہ ہو اور جس حال میں ہو کوشش کر تاکہ تو محب بن جائے اور عاشق بن جائے، اور جب محبت تیری ملکیت بن گئی تو ہمیشہ کے لیے محب بن گیا۔ قبر میں، حشر میں اور بہشت میں جب تو نے گندم بوئی تو قطعی طور پر گندم ہی اگے گی، اور ڈیر میں گندم ہی ہوگی، اور تنور میں بھی گندم ہی ہوگی۔ مجنوں نے چاہا کہ لیلا کو خط لکھے، قلم ہاتھ میں لیا اور یہ شعر کہا۔ ترجمہ۔ تیرا خیال آنکھ میں مقیم ہے اور تیرا نام میری زبان پر ہے اور تیری یاد میرے دل میں ہے، بس جب ان مقامات میں تو ہی تو ہے تو میں خط کس کو لکھوں؟ مجنوں نے قلم توڑ ڈالا اور کاغذ پھاڑ دیا۔ کئی شخص ہیں جن کے دل ان باتوں سے پر ہیں، لیکن عبارت اور الفاظ میں وہ انہیں نہیں لا سکتے، اگرچہ وہ اس کے عاشق، طالب اور نیاز مند ہیں۔ اس میں تعجب نہیں، اور یہ بات عشق میں مانے نہیں ہوتی، بلکہ خود اصل دل ہے۔
और न्याज़मंदी और इश्क और मोहब्बत। बच्चा दूध का आशिक होता है और वो उससे मदद हासिल करता है और कुव्वत पाता है, और इसके बावजूद वो दूध की शरह नहीं कर सकता कि दूध पीने से मुझे क्या लज्जत मिलती है और उसके ना पीने से किस तरह कमजोर और रंजीदा हो जाता हूँ। अगरचे वो दिलो जान से दूध का आशिक है और बालिग आदमी दूध की ख्वाह कितनी ही शरह करे और तारीफ करे, लेकिन दूध कुछ मजा नहीं देता और उससे लज्जत नहीं मिलती। सालिक की जद्दोजहद और खुदा की अता। इस नौजवान का क्या नाम है? सैफुद्दीन। फरमाया कि सैफ गिलाफ में है, उसे देखा नहीं जा सकता। सैफुद्दीन वो होता है जो दीन के लिए जंग करे और कुल्ली तौर पर उसकी कोशिश हक के लिए हो। वो खता से सवाब पैदा करे और बातिल से हक की तमीज करे। बेशक वो पहले अपने आप से जंग करता है और अपने इखलाक को मुहज्जब बनाता है। इब्तिदा कर अपने नफ्स से, और सब नसीहतें वो अपने आप को करता है। वो अपने आप से कहता है, आखिर तू भी आदमी है। तू हाथ पांव, गोश होश, आंखें और मुंह रखता है, और अंबिया और औलिया जिन्होंने दौलतें पाई और मकसूद को पहुंचे, वो भी बशर ही थे। मेरी तरह उनके भी कान, अक्ल, जुबान, हाथ और पांव थे। इसका क्या मतलब कि उन्हें इजाजत मिल गई और उनके लिए दरवाजा खोल दिया गया, मगर मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ। वो अपने आप को सजा देता है और दिन रात अपने आप से जंग करता है। तूने क्या किया और तुझसे क्या हरकत सरजद हो गई कि तू मकबूल नहीं हुआ? अगर तू मकबूल होता तो खुदा की तलवार और खुदा की जुबान बन जाता। मसलन 10 आदमी चाहते हैं कि एक घर में दाखिल हों, उनसे 9 आदमियों को रास्ता मिल जाता है और एक बाहर रहता है, उसे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलती। ये शख्स अपने आप में सोचता है और रोता है कि मैं अजीब हूँ, मैं क्या कर बैठा कि मुझे अंदर नहीं जाने देते, और मुझसे क्या बेअदबी हो गई। चाहिए कि वो अपने आप को गुनाह का जिम्मेदार ठहराए और अपने आप को कसूरवार और बेअदब गर्दाने, ना ये कि वो ये कहे कि गुनाह मुझसे खुदा ने कराया है, मैं क्या करूं, खुदा ही ऐसा चाहता है। अगर वो चाहता तो मुझे नेकी की इजाजत दे देता। ऐसी बात से खुदा को गाली देने का पहलू निकलता है और ये खुदा को तलवार मारने के मुतरादिफ है। बस इन मानों में वो खुदा पर तलवार हुआ, ना कि खुदा की तलवार। खुदावन ताला खवेशो अकरबा से मुनज़्ज़ा है। सूरह इखलास। ना कोई उसकी औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। बंदगी के जरिया के बगैर उस तक किसी को राह नहीं मिलती। वल्लाहुल गनी व अंतुमुल फुकरा। सूरह मुहम्मद। अल्लाह बेनियाज है और तुम सब मोहताज हो। मुमकिन नहीं कि तू ये कह सके कि जिस शख्स ने खुदा का रास्ता पा लिया वो खुदा का ज्यादा अपना और ज्यादा आशना था और खुदा का ज्यादा ताल्लुकदार था। उसका कुर्ब हासिल नहीं होता सिवाय उसके कि बंदगी को जरिया बनाया जाए। वो मुअत्ता है अलल अतलाक। उसने दरिया का दामन मोतियों से भर दिया, कांटे को फूल की खिलत पहना दी और मुश्ते खाक को बगैर किसी गर्ज के जिंदगी और रूह बख्शी। आलिम के तमाम अज्जा उससे नसीब याफ्ता हैं। जब कोई सुनता है कि फलां शहर में एक सखी है जो बहुत बड़ी बख्शिश और एहसान करता है, तो वो बेशक इस उम्मीद पर वहां जाता है कि उससे बहरामंद हो। बस जब खुदा का इनाम इतना मशहूर है और सारा आलिम उसके लुत्फ से बाखबर है, तू क्यों उसकी गदाई नहीं करता? और तू खिलत और सिला की तवा क्यों नहीं रखता? तू काहिलों की तरह बैठा है कि अगर वो चाहे तो मुझे देगा, और तू खुद कोई तकाजा नहीं करता। कुत्ता जिसमें अकल और इदराक नहीं है, उसे भी जब भूख लगती है और रोटी नहीं मिलती तो तेरे सामने आता है और अपनी दुम हिलाता है। मतलब ये कि मुझे रोटी दे। मेरे पास रोटी नहीं, तेरे पास है। उसे इतनी तमीज होती है। आखिर तू कुत्ते से कम नहीं है। कुत्ता इस बात पर राजी नहीं होता कि मट्टी में सोया रहे और कहे कि तुम चाहोगे तो मुझे रोटी दे दोगे। वो खुशामद करता है और दुम हिलाता है। तू भी दुम हिला और खुदा से मांग और गदाई कर। ऐसे अता करने वाले के सामने गदाई करना बहुत ही मतलूब है। जब तेरे पास नसीब नहीं है तो वो किसी से मांग, क्योंकि वो बखील नहीं है, वो साहिब दौलत है। खुदा तेरे बहुत ही करीब है। हर फिक्र और तसव्वुर जो तू इम्कानी तौर पर कर सकता है वो उसमें मौजूद है, इसलिए कि हर तसव्वुर और हर फिक्र को वही हस्ती बख्शता है। अलबत्ता इंतहाई तौर पर नजदीक होने की वजह से
तू उसे देख नहीं सकता, उसके असर से तू उसे देखता है। बेशक उसकी जात को तू नहीं देख सकता। मसलन कोई शख्स हमाम में जाए तो गर्म हो जाता है। हमाम में वो जिधर भी फिरे आग उसके साथ है, ताबे आतिश की तासीर से वो गर्मी हासिल करता है, लेकिन वो आग नहीं देखता। जब वो हमाम से बाहर आता है तो उसे लाजिमन देखता है और समझता है कि उसे आग से गर्म करते हैं। वो जान लेता है कि हमाम की वो गर्मी भी आग ही से थी। आदमी का वजूद भी एक अजीब हमाम है। उसमें अक्ल, रूह और नफ्स सब की गर्मी है। लेकिन जब तू वजूद के हमाम से बाहर आता है और उस जहान को जाता है तो बेशक तू अक्ल की जात को देखता है और जाते नफ्स और जाते रूह का मुशाहिदा करता है। अब तू समझ लेता है कि वो ज़ीर की अक्ल की गर्मी से थी और वो मकरो फरेब और हीले नफ्स के थे और जिंदगी रूह का असर थी। बेशक तू हर एक की जात को देखता है। हाँ, जब तक तू हमाम में है आग को नहीं देख सकता, उसे सिर्फ उसके असर की वजह से महसूस करता है। अगर किसी की आंखें बंद करके उसे बहते हुए पानी में डाल दिया जाए तो वो आबे रवां को नहीं देख सकता। कोई तर और नर्म चीज उसके जिस्म पर पड़ती है मगर वो नहीं जानता कि ये क्या है। अगर उसकी आंखें खोल दी जाएं तो वो समझ लेता है कि बेशक वो पानी था। पहले उसने पानी को उसके असर से समझा था, अब उसकी जात को देखा। बस खुदा की गदाई कर और उससे हाजत तलब कर, क्योंकि कोई जाया नहीं होता। उदूनी अस्तजिब लकुम, सूरह मोमिन। हमसे दुआ मांगते रहो, हम कबूल करते रहेंगे। खुदा पर पूरा भरोसा। हम समरकंद में थे और खारिज़म शाह समरकंद का मुहासरा किए हुए था। लश्कर को सफ अरा किए वो जंग कर रहा था। इस मुकाम पर एक बहुत ही बेहतर साहिबे जमाल लड़की थी। ऐसी हसीन के शहर भर में उसकी नजीर न थी। मैंने सुना कि वो हर लम्हा कहती थी, ऐ खुदा तू क्यों कर रवा रखेगा कि मुझे जालिमों के हाथ में दे दे, और मैं जानती हूँ कि तू हरगिज ये रवा नहीं रखता और मैं तुझ पर इत्मीनान रखती हूँ और अपने आप को तेरे सुपुर्द करती हूँ। जब शहर को हमलावरों ने तबाह कर दिया और वहां की सारी आबादी को असीर करके ले गए तो उस औरत की लौंडियां भी कैदी बना ली गईं, मगर उसे कोई तकलीफ न पहुंची और उसके इंतहाई हसीन होने की वजह से किसी ने उस पर नजर न की। ये इसलिए हुआ कि तू समझ ले, जो शख्स अपने आप को खुदा के सुपुर्द कर देता है वो तमाम आफतों से अमन पाता है और सलामत रहता है और उसके हुजूर में किसी की हाजत जाया नहीं जाती। एक दरवेश ने अपने बेटे को सिखा रखा था कि वो जो चीज बाप से मांगता वो कहता खुदा से मांग। जब वो रोता और कोई चीज खुदा से मांगता तो बाप उसी वक्त वो चीज हाजिर कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए। एक दिन वो लड़का घर में तन्हा रह गया था। उसे हरीसा यानी हलीम खाने की ख्वाहिश हुई। आदते महूदा के मुताबिक उसने कहा मुझे हरीसा चाहिए। उसी वक्त गैब से हरीसा हाजिर हो गया। लड़के ने पेट भर कर खाया। जब उसके माँ बाप आए तो पूछने लगे किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बोला मुझे हरीसा चाहिए था, वो मैंने खा लिया है। बाप ने कहा खुदा का शुक्र है कि तू इस मुकाम पर पहुंच गया और खुदा पर तेरा इत्मीनान और भरोसा कवी हो गया। हजरत मरियम की माँ ने जब मरियम को जना तो उसने खुदा की मन्नत मान रखी थी कि वो इसे खाना खुदा के लिए वक्फ कर देगी और उससे कुछ ताल्लुक नहीं रखेगी, और वो मस्जिद के एक गोशा में जा पड़ी। जिक्रिया ने चाहा कि उसकी तीमारदारी करे और हर कोई यही चाहता था। चुनाचे सब में इस बात पर झगड़ा हो गया और उस जमाना में यह कायदा था कि किसी चीज पर झगड़े की सूरत में पानी में लकड़ी डालते। जिसकी लकड़ी पानी की सतह पर रहती वो चीज उसकी मलकियत हो जाती। इत्तेफाक से इस मौका पर जिक्रिया की फाल दुरुस्त हुई। अब सब ने इत्तेफाक कर लिया कि ये जिक्रिया का हक है। जिक्रिया हर रोज उसके लिए खाना लाता। वो जो भी खाना लाता मस्जिद के एक गोशा में वो ही पहले से मौजूद होता। बोला, ऐ मरियम, आखिर मैं तेरा वसी हूं, मुझे बता तो सही ये खाना तू कहां से लाती है? बोली, जब मुझे खाने की हाजत हो तो मैं जो मांगू खुदावंद भेज देता है। उसके करम और रहमत की कोई इंतहा नहीं है। जिस किसी ने उस पर इत्मीनान किया जाया ना हुआ। जिक्रिया ने कहा, ऐ खुदा, सबकी हाजत तू ही पूरी करता है, तो मैं भी एक आरजू रखता हूं, उसे पूरी फरमा। मुझे एक बेटा दे जो तेरा दोस्त हो। मेरी तरफ से उसको रगबत दिलाए बगैर ही उसे तुझसे मुआनिसत हो।
और वो तेरी बंदगी में मशगूल रहे। खुदावंद ताला हजरत याह्या को वजूद में ले आया। उस वक्त बुढ़ापे से याह्या के बाप की कमर दोहरी हो चुकी थी। वो बेहद ज़ईफ हो चुका था। उसकी माँ बांझ थी और बूढ़ी हो चुकी थी। उसे बहुत हैस आया और वो हामिला हो गई। ऐसा इसलिए होता है ताकि तू समझ ले कि खुदा की कुदरत के सामने ये सब एक बहाना है और सब कुछ इसी से है, और अशिया का हाकिम मुतलक वही है। मोमिन वो है जो समझ ले कि उसके पीछे कोई है और हमारे हालात से हर लिहाज से मुत्तला है और देखता है, अगरचे हम उसे नहीं देखते, और इसका उसे यकीन होता है, बेखिलाफ उस शख्स के जो कहता है नहीं ये सब अफसाना है और बावर नहीं करता। एक वो वक्त आता है जब उसे सजा मिलती है, फिर वो कहता है मैंने बुरा किया और खता की, सब कुछ वही था, मैंने ख्वामखा उसकी नफी की। मिसाल के तौर पर तू जानता है कि मैं दीवार के पीछे हूँ। तू रबाब बजाता है और पूरी तवज्जो से बजाता है और उसका सिलसिला मुनक़ते नहीं करता, क्योंकि इस नमाज की रबाबियत इसलिए नहीं है कि तू सारा दिन कयाम, रुकू और सजदा करता रहे। इससे अर्ज ये है कि जो हालत नमाज में तारी होती है वो तुझसे पेवस्त रहे, ख्वाह तू सोया हुआ हो, ख्वाह बेदार हो, ख्वाह लिख रहा हो और ख्वाह पढ़ रहा हो, किसी हाल में तू याद हक से खाली ना हो, ताकि तू अला सलातिहिम दाइमून सूरह मारिज वो नमाज में हमेशा रहते हैं कि मुस्ताक हो। बस गुफ्तगू, खामोशी, खाना, सोना, गुस्सा, उफफ, ये सब औसाफ चक्की की गर्दिश के हैं कि वो घूमती रहती है। चक्की की गर्दिश पानी के वास्ता से है। उसने अपने आप को पानी के बगैर भी आजमा देखा है। बस अगर चक्की उस गर्दिश को समझे कि ये आज खुद है तो ये उसकी जहालत और बेखबरी है। बस अगर गर्दिश के लिए मैदान तंग है, क्योंकि दुनिया का यही हाल है। तू खुदावंद ताला के हुजूर में गिरिया जारी करके, ऐ खुदा मुझे इस नज़ारा और इस गर्दिश के बगैर एक दूसरी रूहानी गर्दिश अता फरमा। जब तमाम हाजितें तुझ ही से पूरी होती हैं और तमाम मौजूदात पर तेरा कर्म और तेरी रहमत आम है, तो मेरी हाजत भी तू ही पूरी कर। बस अपनी हाजतें हर लहजा अर्ज किए जा और उसकी याद के बगैर ना रह, क्योंकि उसकी याद मुर्गे रूह के लिए परोबाल की कुव्वत है। अगर वो मकसूद बकली हासिल हो जाए तो नूरन अला नूर। एक दफा खुदा को याद करने से बातिन थोड़ा थोड़ा मुनव्वर होता है और दुनिया से तेरा इनकिता होने लगता है। उसकी मिसाल ये है कि एक परिंदा चाहे कि वो आसमान पर उड़े, अगरचे वो आसमान पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन लहजा बलहजा जमीन से दूर होता जाता है और दूसरे परिंदों से बुलंद हो जाता है। या मसलन एक डिबिया में मुश्क हो, उस डिबिया का मुंह तंग हो तो उसमें हाथ डालकर मुश्क बाहर नहीं निकाल सकता, लेकिन इसके बावजूद तेरा हाथ मुअत्तर हो जाता है और मशाम को अच्छा लगता है। बस खुदा की याद ऐसी ही है, अगरचे तू इस जात तक नहीं पहुंचता, उसकी याद बड़ा असर करती है और तुझे उसकी याद से बहुत बड़े फायदे हासिल होते हैं। इज्तिहाद और खुदा की इनायत। शेख इब्राहिम एक अजीज दरवेश है। जब हम उसे देखते हैं तो दोस्त याद आ जाते हैं। मौलाना शमसुद्दीन की उन पर एक बड़ी इनायत थी। वो हमेशा कहते हमारा शेख इब्राहिम, और अपने आप से निस्बत करते। इनायत और चीज है और इज्तिहाद और बात। अंबिया नबूवत के मुकाम पर इज्तिहाद के वास्ता से नहीं पहुंचते, ये दौलत उन्हें इनायत से मिलती है। अलबत्ता सुन्नत यह है कि जिसे ये हासिल हो उसकी सीरत और जिंदगी इज्तिहाद और नेकी के तरीक पर होती है, और ये भी अवाम के लिए है ताकि वो उन पर और उनके कौल पर एतमाद करें, क्योंकि उनकी नजर बातिन पर नहीं पड़ती, ये जाहिर बीन है। और जब अवाम मुताबियत करते हैं तो उसके वास्ता और बरकत से वो बातिन का रास्ता पाते हैं। आखिर फिरौन ने भी सखावत, एहसान और इशाअत खैर में बहुत जद्दोजहद की थी, लेकिन इनायत न थी, इसलिए उस बंदगी, जद्दोजहद और एहसान को फरोग न हुआ और इन सब पर पर्दा पड़ गया। इसकी मिसाल उस अमीर जैसी है जो किला में अहले किला पर एहसान और नेकी करता है, और उसे उसकी गर्ज ये होती है कि वो बादशाह से बागी और सरकश न हो जाए। जरूरी है कि उस एहसान की ना कदर होगी और ना उसे फरोग हासिल होगा। और अगरचे फिरौन से इनायत की नफी कुल्ली तौर पर नहीं की जा सकती,
और हो सकता है कि उस पर खुदावंद ताला की इनायत खफी हो, किसी मसलहत से उसको मरदूद गर्दाना गया हो। इसलिए कि बादशाह में कहर और लुत्फ दोनों होने चाहिए, और वो खिलत भी दे सकता हो और कैद भी कर सकता हो। अहले दिल इससे इनायत की कुल्ली नफी नहीं करते, अलबत्ता अहले नजर उसे कुल्ली तौर पर मरदूद समझते हैं, और बकाए जाहिर की जिहत में यही मसलहत है। आला मर्तबा एक फांसी है। बादशाह किसी को फांसी पर चढ़ाता है तो उसे खलकत के सामने बहुत ऊंची जगह पर लटका देते हैं। उसे घर में फांसी दी जा सकती है और हकीर सी मीख से उसे लटकाया जा सकता है, लेकिन चाहते हैं कि लोग उसे देखें और उनके दिलों में इत्मीनान पैदा हो, और बादशाह के हुक्म का निफाज और हुक्म की तामील का लोगों को इल्म हो। आखिर हर फांसी लकड़ी की नहीं होती, मनसब, बुलंदी और दुनिया की दौलत भी तो बहुत ऊंची फांसियां हैं। खुदावंद ताला जब चाहता है कि किसी को पकड़े तो उसे बहुत बड़ा मनसिब और बड़ी बादशाही दे देता है, जैसे फिरौन और नमरूद वगैरह के साथ किया। उनके लिए वो सब एक फांसी है। खुदावंद ताला उन्हें उस फांसी पर चढ़ा देता है ताकि तमाम खलकत उससे मुत्तला हो। इसीलिए खुदावंद ताला ने फरमाया है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, बस मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं। हदीस कुदसी, यानी मैंने सारे जहान को पैदा किया और इससे मेरी गर्ज अपने आप को जाहिर करना था, कभी लुत्फ से और कभी कहर से। ये ऐसा बादशाह नहीं है जिसके मुल्क को पहचानने वाला एक ही शख्स काफी हो। अगर दुनिया के जर्रात तमाम के तमाम उसे पहचानने वाले बन जाएं, तो भी वो उसकी तारीफ में कासिर और आजिज रहें। नफी और असबात। तमाम खलाइक दिन रात अजहार हक करती हैं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो ये जानते हैं और इजहार से वाकिफ हैं, और बाज गाफिल हैं। जो कुछ भी हो इजहार हक साबित हो जाता है। ये इस तरह है जैसे कोई अमीर फरमाए कि फलां को मारो और उसकी तादीब करो। वो चीखता और फरियाद करता है, और उसके बावजूद दोनों ही अमीर के हुक्म का इजहार करते हैं, अगरचे वो दर्द की वजह से चिल्लाता है। लेकिन सब जानते हैं कि पीटने वाला और पिटने वाला दोनों अमीर के महकूम हैं, और इन दोनों से हुक्म अमीर का इजहार होता है। वो शख्स जो खुदा को साबित करने वाला है हमेशा खुदा का इजहार करता है, और जो नफी करता है वो भी मजहर है। इसलिए कि किसी चीज का इस्बात नफी के बगैर मुतसव्वर नहीं, और उसमें कुछ लज्जत और मजा नहीं होता। मसलन कोई मनाजिर मजलिस में मसला बयान करे तो वहां अगर मोतरज ना हो, जुला नसल्लुम, हम तस्लीम नहीं करते ना कहे, वो असबात क्या करेगा और उसके नुक्ता का क्या मजा आएगा। इसलिए कि असबात नफी ही के मुकाबले में अच्छा लगता है। इस तरह ये दुनिया भी खुदा के इजहार की महफिल है। खुदा को साबित करने वाले और उसकी नफी करने वाले दोनों ही इस महफिल में रौनक हैं, और दोनों ही खुदा के मजहर हैं। दोस्त पर फिदा हो जाओ। कुछ दोस्त मीर अकद शाह के पास गए। वो उन पर बहुत खफा हुआ कि उन सब का यहाँ क्या काम। कहने लगे, हमारा ये गलबा और ये अजतहाम इसलिए नहीं है कि हम किसी पर जुल्म करें, ये इसलिए है ताकि हम तहम्मुल और सब्र में मावन हों और एक दूसरे की मदद करें। जिस तरह ताज़ियत के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो मौत को दूर करते, बल्कि गर्ज ये होती है कि जिस पर मुसीबत आई है उसे तसल्ली दें और उसकी तबीयत से वहशत को दूर करें। अल-मोमिनून का नफ्स वाहिद, तमाम मोमिनीन मिसल एक ज़ात वाहिद के हैं। सब दरवेश एक जिस्म का हुक्म रखते हैं। अज़ा में से अगर एक उज़्व को तकलीफ हो तो सब अज्जा को दुख होता है। आंख देखना छोड़ देती है, कान सुनना तरक कर देते हैं और जुबान गुफ्तगू से रुक जाती है। सब बाहिम मुत्तहिद हो जाते हैं। दोस्ती की शर्त यह है कि आदमी अपने आप को दोस्त पर फिदा कर दे और दोस्त की खातिर अपने आप को शोरश में डाल दे, इसलिए कि सबकी तवज्जो एक ही चीज की तरफ होती है और एक ही बहर में गर्क हुए होते हैं। ईमान का असर और इस्लाम की शर्त यही है। जिस बोझ को जिस्म उठाए वो किस तरह उस बोझ जैसा हो सकता है जिसे रूह उठाती है। कुछ हर्ज नहीं, हमें तो अपने परवरदिगार की तरफ पलटना है। सूरह शुआरा। मोमिन जब अपने आप को खुदा पर फिदा करता है तो उसे मुसीबत, खतरा, हाथ और पांव की क्या फिक्र होती है। जब वो खुदा की तरफ जाता है
हाथ पांव की क्या जरूरत होती है? हाथ पांव इसलिए दिए गए हैं ताकि इनसे तू उस तरफ रवाना हो, लेकिन जब तू हाथ और पांव बनाने वाले की तरफ जाता है तो हाथ के बल चले और पांव को उठा ले और बेदस्तपा हो जाए, जादूगराने फिरौन की तरह चलने लगे, तो हर्ज क्या है? तर्जुमा शेर। चांदी जैसा जिस्म रखने वाले यार के हाथ से जहर खाया जा सकता है, उसकी बातों की तलखी शक्कर की तरह खाई जा सकती है। तर्जुमा शेर। दोस्त नमक की तरह है, जिस जगह पर ऐसा नमक हो वहां अपना कलेजा भी निकाल कर खाया जा सकता है। अम्र और नहीं की हकीकत। अल्लाह ताला खैर और शर दोनों का पैदा करने वाला है, मगर वो पसंद खैर ही को करता है, क्योंकि उसने कहा है, मैं एक पोशीदा खजाना था मगर मैंने पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला अमर और नहीं का इरादा रखता है, और अमर सही तौर पर वकूअ पजीर नहीं होता मगर उस वक्त जबकि मामूर वो काम करने को मकरूह जाने जिसके करने का हुक्म दिया गया हो। भूखे आदमी को ये नहीं कहा जाता कि मिठाई और शक्कर खा लो, और अगर ऐसा कहा जाए तो इसका नाम अमर नहीं होगा बल्कि इसका नाम तो करम होगा। इसी तरह जिस चीज से इंसान को पहले ही बेरगबती हो उससे नहीं वकूअ नहीं होती। ये दुरुस्त नहीं कि किसी से कहा जाए कि तू पत्थर ना खा, तू कांटे ना खा, और ऐसा कहा जाए तो इसका नाम नहीं होगा। इसलिए अमर बिल खैर और नहीं अनिल शर सही मानों में उस वक्त वकूअ पजीर होगी जब कोई शख्स शर की तरफ रागिब हो और फेले शर की रग़बत और फेले खैर से बेरग़बती रखने वाला हो, लेकिन शर को पसंद न करता हो, मगर उसका ऐसा जाहिर करना महज उस इरादा से हो कि वो मुतकल्लिम को उसकी जहालत की वजह से अमर बिल खैर और नहीं अनिल शर का सबक पढ़ाना चाहता है, क्योंकि सबक देना इस सूरत में मुमकिन है कि मुतअल्लिम जाहिल हो और किसी चीज के मुतल्लिक इरादा करने से मुराद उस चीज के लवाजिम का इरादा करना है, लेकिन इरादा करने वाला उसकी जहालत को पसंद नहीं करेगा। इसी तरह तबीब लोगों के मर्ज का इरादा करेगा जबकि वो तशखीस और इलाज को जाहिर करने का इरादा करे, मगर इलाज और मर्ज की तशखीस उसी वक्त मुमकिन है जबकि लोग बीमार हों, लेकिन वो उनके मर्ज को पसंद नहीं करता। इसी तरह एक नानबाई लोगों की भूख का इरादा रखता है महज अपने कसब और हुसूले मुआश के लिए, लेकिन उनकी भूख को पसंद नहीं करेगा। वो इसे पसंद करता है महज अपनी रोटी फरोख्त करने के लिए। और इसी तरह उमरा और बड़े बड़े लोग चाहते हैं कि उनके बादशाह का कोई ना कोई मुखालिफ और दुश्मन जरूर हो, ताकि वो अपनी बहादुरी और बादशाह से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें, और बादशाह भी उन्हें इसलिए जमा नहीं करता कि उसे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन वो बादशाह के मुखालिफ को पसंद नहीं करते। वो इसे महज इसलिए पसंद करते हैं कि इससे जंग करें। और इसी तरह इंसान अपने दिल में ख्वाहिशात शर का इरादा रखता है, क्योंकि वो ये बात पसंद करता है कि वो शाकिर, मुती, मुत्तकी हो, और ये इसी सूरत में मुमकिन है कि उसके दिल में शुक्र, अताअत और तकवा को तर्क करने की ख्वाहिशात मौजूद हों, और हर चीज के मुताल्लिक इरादा दरअसल उस चीज के लवाजिमात के मुताल्लिक इरादा है। लेकिन इंसान इन लवाजिमात को पसंद नहीं करता, क्योंकि वो मुजाहिदा करने वाला है कि ऐसी अशिया ख्वाहिशात बद का उसके नफ्स से इजाला हो। बस मालूम हुआ कि उसका शर के मुताल्लिक इरादा रखना किसी एक वजह से है, और शर के मुताल्लिक इरादा ना रखना भी किसी दूसरी वजह से है। और मुखालिफ कहता है कि अगर वो शर का इरादा नहीं रखता तो उसकी कोई एक खास वजह है जिससे उसका किसी चीज के मुताल्लिक इरादा रखना ही मुहाल हो जाता है। और जब इंसान उस चीज के लवाजिम और इस मुनकरे नफ्स के अमरो नहीं के लवाजिम का इरादा रखेगा जो शर से रग़बत रखने वाला और खैर से तबन मुतनफ़र है, और चूंकि दुनिया की तमाम बुराइयां उस नफ्स के लवाजिम है, तो वो इन बुराइयों का इरादा नहीं रखेगा और नफ्स का मुरीद नहीं होगा। और जब वो नफ्स का मुरीद ना होगा तो वो नफ्स के लवाजिम अमरो नहीं का इरादा भी ना रखेगा और ना उन्हें पसंद ही करेगा। बस नतीजा ये निकला कि शर दूसरों की निस्बत शर होता है। फिर वो कहता है कि जब वो खैर का इरादा रखने वाला हो और खैरात से बुराइयां दूर हो जाती हैं तो वो दफाए शर का इरादा रखने वाला हुआ, और ईमान कुफ्र के बाद मुमकिन होता है।
اس لیے ایمان کفر کے لوازم میں سے ہوا۔ مختصر یہ کہ شر کا ارادہ ایک قبیح چیز ہے جبکہ وہ عین شر کے لیے ہو، لیکن اس کا ارادہ غیر شر کے لیے ہو تو وہ قبیح چیز نہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قتل کے بدلے میں قتل کرنے سے تمہاری زندگی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قصاص بری چیز ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی بنیاد کو گرانے کے مترادف ہے، لیکن یہ ایک جزوی شر ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو قتل سے بچانا خیر کلی ہے، اور شر جزوی کا ارادہ ترک کر کے شر کلی پر رضامند ہونا تو کبھی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ماں بچے کو جھڑکنے کا ارادہ نہیں رکھتی کیونکہ وہ شر جزوی ہی کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور باپ اسے جھڑکنے کا ارادہ رکھتا ہے کیونکہ جزو عاقلہ شر کو قطع کرنے کی خاطر باپ کی نظر شر کلی پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا، سخت سزا دینے والا ہے۔ بس کیا وہ ارادہ رکھتا ہے یا نہیں کہ اس پر یہ تمام گناہ صادق آئیں، تو اس صورت میں ابتلا ضروری ہوا اور وہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا نہ ہوگا، مگر گناہوں کے وجود کے بعد اور کسی چیز کے متعلق ارادہ گویا اس چیز کے لوازم کے متعلق ارادہ ہوتا ہے، اور اس طرح معافی، صلح اور اصلاح کے حکم کی صورت میں یہ امر جبھی مفید ہوگا کہ خصومت کا وجود ہو۔ اس کی مثال وہی ہے جو صدر الاسلام نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قسم اور تحصیل مال کا حکم دیا ہے، چنانچہ کہا ہے وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ، سورہ بقر، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور مال کا خرچ کرنا اسی صورت میں ممکن ہے کہ مال موجود ہو، گویا کہ اس نے تحصیل مال کا حکم صادر فرما دیا۔ اور جو شخص کسی دوسرے آدمی سے کہے اٹھ نماز پڑھ، اس نے گویا اسے وضو کرنے، پانی حاصل کرنے، غرض کے اس کے تمام لوازمات کے متعلق حکم دیا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔